Hello students, today I'm going to take up the poem Ode to Beauty by the great romantic poet John Keats. Keats was born in London in the year 1795 and he died in Rome in 1821. That means he was just 25 years old when he died. That because of tuberculosis. He was a great romantic poet, and his poetry is characterized by sensual imagery. If we talk about his works, his most popular works include a series of odes. Odes like Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode to Melancholy, Ode to Autumn are among some of the famous odes by him. Apart from the odes, he has also composed long poems such as Endymion, Hyperion, Lamia, Isabella, the Eve of St. Agnes. So, the poem that we people are going to take today, entitled as Ode to Beauty, is actually the first stanza of Keats's great romantic poet, Endymion. It was published in 1818, and the poem is based on the Greek myth of Endymion, a handsome shepherd youth who spent much of his life in constant sleep. He was dear to Diana, the moon goddess. So now let's have the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. See, the first line of this poem has become immortal in literature, and it is one of the oft quoted lines. The line is, "A thing of beauty is a joy forever." The poet says that anything which is beautiful, it is a constant source of happiness. That means whenever we look at something which is beautiful, it gives us a sort of pleasure. It gives us immense joy. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. And that beauty of that particular thing, it increases day by day. Like if something has captured our attention because of its beauty, according to the poet, that will increase our, you can say, attachment or association with that thing increases day by day, and it will never fade away. He says this thing, this appreciation of that beauty increases with the passage of time, and it is the perception of the poet regarding beauty that it never goes off with the passing time, but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams. Again, he's saying the same thing. If we just try to explain this line, whatever I told you earlier applies to this line also. The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time. Rather, it beautifies more and more. For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. He's saying, a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams. See, simple thing is that if you are happy, if you are joyous, just by looking at something or just by experiencing the closeness of something beautiful, surely that is going to give you peace of mind. And if one is having peace of mind, naturally he'll be having sound sleep. And it's quite obvious that one can have sound sleep only when one is physically fit. That means when we enjoy something that gives us not only mental peace but also physical fitness,
and this is a sweet combination which ultimately gives you the peace of mind and healthy life. So that's what the poet is saying. If we are associated with something beautiful, with the passage of time, our bonding with that beauty increases. It never fades away. And that thing is going to give you pleasure, joy again and again. And when you feel joyous, that is reflected in your whole persona. That means it gives you peace of mind. And when one is enjoying peace of mind, one can have sound sleep. And when one is having sound sleep, naturally, he'll be healthy, he'll be fit. Let's proceed further. Therefore, on every morrow, we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. He says that the poet says here that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. I told you earlier also, if we are having, you can say, close communion with something beautiful, naturally that is going to give you peace of mind. So same thing is being repeated here. He says, just because beauty is so important in our lives, that's why every morrow, that means every day, we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. We are trying to renew our association with the earthly beauties. It is the beauty which builds the desire in us to live. Though we all know that there are sad moments and cruel people around us, we cannot change that, but we can shift our focus. He says, spite of despondence, there is grief, there are sad moments in everybody's life. There is the inhuman dearth, there is a lack of people having humanity, having sympathy. The world is full of such people. Even then, what keeps us going, what makes us go ahead, it is our association with something beautiful, of noble natures, of the gloomy days. He says there is dearth, there is lack of people having noble nature. Days are gloomy here, dark here. Earth is full of melancholic thoughts or ideas. Moments are all melancholic. Negative thoughts are there. Despondence is there. Of all the unhealthy and over darkened ways, the earth which is full of sad and gloomy moments, and the world which is all dark and full of diseases made for our searching. It's like a dark area where we have to search our own ways. So world is like that, but what keeps us going, it is our association with something beautiful which makes us go ahead. So that's all for today in English. Let's have the whole thing in Hindi so that it may be easier for you people to understand. So let's go back. So students, ओड टू ब्यूटी ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा, और जॉन कीट्स रोमांटिक एरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1795 में लंदन में, और डेथ हुई थी रोम में 1821 में, यानी केवल 25 साल के थे ये जब इनकी मौत हुई। और इनकी मौत का कारण था टीबी की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। आजकल ये बहुत कह सकते हैं इसका बहुत इजीली इलाज हो जाता है, लेकिन जब कीट्स का समय था उस टाइम पर ये एक ला इलाज बीमारी मानी जाती थी, तो उनकी डेथ इस बीमारी की वजह से हुई।
अगर एक कवि के तौर पर कीट्स को देखा जाए तो कीट्स ने बहुत ही बेहतरीन कविताएं लिखी हैं, रोमांटिक पोइट्री लिखी है। ख़ास तौर से इनका जो मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन है वो है ओड्स, एक सीरीज़ ऑफ ओड्स हैं। कुछ के नाम मैं लेना चाहूँगी, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू मेलनकली, ओड टू ऑटम वगैरह वगैरह, बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब कीट्स को कीट्स बनाया ही उनकी ओड्स ने है। इसके अलावा उन्होंने कुछ लंबी कविताएं भी लिखी हैं, जैसे कि एंडीमियन है, हाइपीरियन है, लामिया है, इसाबेला है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। अपनी ये जो कविता है जिसे आज हम पढ़ेंगे, ओड टू ब्यूटी, ये असल में उनकी बड़ी कविता, लंबी कविता एंडीमियन का शुरुआती हिस्सा है। और ये जो कविता थी एंडीमियन, वो 1818 में 1818 में पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम है इसका बैकग्राउंड है एक ग्रीक मिथ, यूनानी कहानी के ऊपर, जिसमें एंडीमियन एक गडरिया था, बहुत खूबसूरत गडरिया था, जो अपनी सारी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय सोने में बिताता था। और वो ख़ास था मून गॉडेस डायना का। तो ये है हमारी कविता का बैकग्राउंड। असल में कविता में एक तरह से पोइट ने पूजा है ब्यूटी को, खूबसूरती को, सुंदरता को। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कविता की पहली लाइन ही इस ओड की, ये जो इस जो पोएम है इसकी जो पहली लाइन है, ये अमर हो चुकी है साहित्य संसार में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। पोइट का कहना है कि कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफुल होती है, खूबसूरत होती है, वो हमेशा हमें खुशी देती है। आप इस बात को वैसे भी देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खूबसूरत देखते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति की सुंदरता हो या किसी फूल की सुंदरता हो, या कई बार हमें बादल का ही कोई आकार बड़ा खूबसूरत सा लगता है, मतलब कुछ भी हमारी चॉइस हो सकती है, सुंदरता का हमारा खुद का पैमाना हो सकता है, पर कुछ भी जो भी खूबसूरत है वो हमें खुशी देता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पोएट का कहना है कि उस खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती समय के बीतने के साथ बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ी बात कि वो कभी भी नथिंग नहीं बनेगी, वो कभी भी गायब नहीं होगी। नथिंगनेस हियर स्टैंड्स फॉर फेडिंग अवे। वो कभी गायब नहीं होगी, फेड नहीं होगी। कि कोई भी चीज़ जो सुंदर है वो हमारे लिए खुशियों का स्रोत रहेगा, और उसकी वो खूबसूरती बढ़ती जाती है समय के बीतने के साथ। जबकि हमारा ये मानना है कि समय बीतने के साथ जो है चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन ब्यूटी को लेकर पोएट का ये कहना है कि कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफुल है, मतलब जो सुकून हमें उस चीज़ को देखने से मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, उसका वो जो लवलीनेस है वो बढ़ता जाता है समय बीतने के साथ, और वो कभी भी नथिंग नहीं बनेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बल्कि वो एक तरह से हमारे लिए शांति का कारण बनेगा। बावर वैसे तो होता है निवास स्थान, रहने की जगह। तो देखिए, शांति जो है वो दिमाग में रहती है। अगर हम बात करें ना कि इंसान के अंदर शांति कहाँ रहती है, तो शांति हमें मानसिक फील होती है, दिमागी शांति फील होती है। तो पोएट का कहना है कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत होती है वो हमें खुशी देती है, और वो जो खुशी है वो हमेशा हमें शांति देगी। और अगर आप शांत हैं तो स्लीप, नींद जो आएगी आपको, वो बहुत गहरी सी आएगी। भाई देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम है, पेपर है, तो आपको कहाँ नींद आती है? नींद उड़ जाती है। लेकिन वहीं आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपने खूब दिन भर मटर गश्ती की है, तो रात को अच्छी सी नींद आती है। तो वैसे ही पोएट भी कह रहा है कि जो चीज़ प्यारी है, खूबसूरत है, वो हमें खुशी देती है, और जब वो चीज़ खुशी देती है तो वो एक एक तरह से शांति, हमें मानसिक शांति देती है, और मानसिक शांति की वजह से हमें अच्छी नींद आती है। कैसी नींद? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों वाली नींद। एंड हेल्थ, और जाहिर बात है जब आपको गहरी सी नींद आएगी तो आप स्वस्थ हैं। भाई हम स्वस्थ होते हैं तभी हमें गहरी नींद आती है। मतलब हर चीज़ देखिए कितनी खूबसूरती से एक से कड़ी दूसरी जुड़ी हुई है।
एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और तब हम चैन से सांस ले पाते हैं। यानी कुल मिला के इस पैराग्राफ में पोइट ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है वो हमें खुशी देती है हमेशा, और उसकी जो खूबसूरती है वो हमेशा समय के साथ बढ़ती जाती है। कवि का ऐसा मानना है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और उस खुशी की वजह से हमें हमेशा सुकून, शांति मिलती है, और वो शांति हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होती है, गहरी नींद के लिए, सपनों वाली नींद के लिए। और उस सपनों वाली नींद को लेकर हम स्वस्थ रहते हैं, और हम एक तरह से फिट एंड फाइन जिसको कहेंगे, बहुत ही हेल्दी रहते हैं। हमारी जो सांसें हैं वो भी बिल्कुल कंट्रोल्ड रहती हैं, यानी हम किसी भी हालत में एजिटेट नहीं होते हैं, किसी भी तरह से एक तरह से परेशान नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग को सुकून देने की जो बात आती है तो सुंदरता अपने आप सामने आती है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. पोइट कह रहा है इसीलिए एवरी मोरो, हर सुबह, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हर सुबह हम लोग रीद कर रहे होते हैं। रीद वैसे तो पुष्प चक्र को कहते हैं, फूलों के चक्र को, पर रीद यहाँ एसोशिएट करने के लिए, बांधने के लिए, बाइंड के सेंस में आया है कि इसीलिए हर सुबह हम लोग मानो एक फूलों सा का बंधन बांध रहे होते हैं इस धरती के साथ। फूलों का बंधन यहाँ पर एक तरह से प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया गया है। फूलों के बंधन का मतलब हुआ किसी भी धरती के किसी भी सौंदर्य के साथ जुड़ना, कोई भी चीज़ जो धरती पे सुंदर है उसके साथ जुड़ने को। तो हर सुबह यानी हर दिन हम अपने आप को किसी न किसी धरती की सुंदरता से जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, वरना अर्थ कैसी है, स्पाइट, स्पाइट ये शॉर्ट में है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस कि धरती कैसी है, यहाँ डिस्पोंडेंस है, निराशा है। भाई धरती पे तो जो इंसान है उनकी ज़िंदगी में कमियां हैं, हमारे सब की लाइफ में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई गम है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ जो हमें बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, तो वो हमें हमेशा खुशी देती है। लाइफ में किसी के भी कम परफेक्शन नहीं है, सब आदमी अधूरे हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई कमी है। लेकिन क्या चीज़ है जो हमें जीने के लिए उकसाती है, क्या चीज़ है जो हमें ज़िंदगी जीने पे मजबूर करती है? कीट्स का ये मानना है वो है सुंदरता, सौंदर्य। कह रहा है कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कि ये जो धरती है जहाँ निराशा है, इस निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यहाँ जो इनह्यूमन डर्थ, डर्थ यानी कमी, कि यहाँ जो नोबल नेचर की, अच्छे व्यवहार की, अच्छे लोगों की, महान लोगों की, महान व्यवहार की जो इनह्यूमन डर्थ है, अमानवीय कमी है, यानी इतनी ज़्यादा कमी है कि यहाँ अच्छे लोग गिनती के हैं, ना के बराबर लोग हैं इस धरती पर। सॉरी। ऑफ द ग्लूमी डेज, ये जो धरती है जहाँ निराशा से भरे हुए दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ये जो धरती है जहाँ हमारे पास अनहेल्दी चीज़ें, यानी हम बीमारी से ग्रस्त रहते हैं आधे टाइम तो, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और दुनिया कैसी है, अंधेरे से घिरी हुई। यहाँ कोई आपको रोशनी देने वाला नहीं है, यहाँ कोई आपको सहारा देने वाला नहीं। जैसा उसने पहले ही कहा कि ये जो दुनिया है यहाँ कमी है बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की, और ये दुनिया जो है निराशा से भरी हुई है। ये जो है यहाँ बीमारियाँ हैं, यहाँ अंधेरा है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जहाँ हमें अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। यहाँ हम लोग हर सुबह अपने आप को कोशिश करते हैं जोड़ने की किसी धरती की सुंदरता से, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून को हासिल कर सकें। ये जो लाइंस हैं कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ चलने का तरीका कैसा है, उल्टा, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। मतलब जो धरती है जहाँ कमी है, जहाँ निराशा है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, अंधेरा है, जहाँ हम भटक रहे हैं, उन सब से हमें पार लगवाने के लिए धरती पर कोई ना कोई ऐसी खूबसूरती रहती है जिससे हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वही चीज़ हमें आगे जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी।